It might be possible that you cracked neither of them and BitSat is your last option to get into a tier 1 college. You have got this second chance. Don't waste it and give your best. जितना भी दिन बच्चे अपनी जान लगा दो, एंड फाइनल एग्जाम के दिन भी जस्ट गो एंड गिव योर फकिंग बेस्ट. कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम है यार. जाओ और फोड़ के आ जाओ, मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ. सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन बाउंस बैक इन द गिवन डेज. जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हैं, गिवन इट 7 days, 14 days, 20 days. In this last few days, it is important that you follow these points which I am going to tell you in this video, which are very, very, very important, so that you don't fuck up in the end exam of BitSat. And अगर अभी भी तुम भटक रहे हो ना कि मैं कैसे पढ़ूँ भैया, कहाँ से पढ़ूँ, रिसोर्स समझ नहीं आ रहा, from where to revise things, what all mistakes to not do, I'll cover everything in this video. And इस वीडियो के बाद you will know exact things you need to do in the end moment in the last few days. Starting with the point number 1, which is the syllabus completion, right? तो सबसे पहले you need to make sure कि आपका at least 70 to 80% of the syllabus complete होना चाहिए at least in order for you to get good marks in BitSat. And syllabus completion का मतलब मैं नहीं बोल रहा कि JEE advanced level हर चीज़ deep में घुस के, नहीं. You need a very basic idea. You need to cover the width and not the depth. You need to understand it. You don't need to cover the depth, but you need to cover the width of the syllabus. That's very, very important. ये चीज़ तुमने समझ ली, then you'll nail BitSat. Even if you have less preparation, but तुम BitSat एकदम फोड़ के आ जाओगे. So make sure you are done with basic formulas, at least for physics and maths. Maths में even if you do the formulas properly, you'll nail 50 to 60% of the questions that comes in BitSat like this. ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन तुम उड़ा करके आ जाओगे. बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में भी it's mostly formula based. So make sure to remember all the formulas and you know the exact application of those formulas कि उन formulas को apply कैसे करते हैं. So this is very important. Now the next point is very important point, and in this point अभी भी काफ़ी बच्चे confused है कि from where to revise the concepts, from where to revise the theory. कि मान लो भैया हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं और हमको कोई एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि ये वाला कंसेप्ट हमारा वीक रह गया, तो क्या हम पूरा का पूरा लेक्चर अभी वापस बैठ के देखें या फिर हम कोई बुक पढ़ने लग जाए. नो, दिस इज़ नॉट द टाइम. सो आई विल शेयर यू द बेस्ट रिसोर्स कि अभी एंड के टाइम में यू नीड टू कवर थिंग्स क्विकली, यू नीड टू रिवाइज थिंग्स क्विकली. देन आई विल शेयर द बेस्ट रिसोर्स विथ यू फ्रॉम वेयर यू कैन watch the theoretical part and make notes accordingly. So for physics, you can follow EduNiti or eSaral. eSaral I followed personally in my time, so you can just search eSaral Physics Revision Series and you'll get a whole playlist and you can follow that. It's really, really brilliant. It covers all the basic concepts, all the formulas, and you'll be able to revise everything of physics from that playlist. For chemistry, the best resource I would recommend is Pankaj Sir Chemistry. उनके latest videos follow मत करना, but उनके पर्सनल चैनल में 2-3 साल पहले जब मैं प्रिपेयर करता था, आई हैव सीन हिज वीडियोज़. जस्ट सर्च पंकज सर क्रैश कोर्स केमिस्ट्री एंड यू विल गेट प्ले लिस्ट फॉर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. That is absolutely gold mine playlist, absolutely gold mine, and you are going to love that. कोई सा भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा केमिस्ट्री का, just go and watch from that playlist and you will be done and you will just मतलब तुम फोड़ के आ जाओगे केमिस्ट्री को यार, वो अगर प्लेलिस्ट तुमने बहुत ढंग से देख ली तो. दीज आर द रिसोर्स. बाकी भैया मैथ्स के लिए कहाँ से करें? सो मैथ्स के लिए आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रिकमेंडेशन. जो भी तुम्हें वन शॉट या जो भी टीचर पसंद आए उससे देख सकते हो, बट मेनली ट्राई टू कवर मैथ्स बाय योर सेल्फ. प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन एंड रिमेंबर ऑल द बेसिक थिंग्स एंड फॉर्मूलेज. दैट्स इट. ठीक है भैया, ये तो बात थी थ्योरी की. नाउ क्वेश्चंस की हम कहाँ से प्रैक्टिस करें? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यू कैन डू फ्रॉम जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. किसी और रिसोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है. फिजिक्स एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस कर डालो बिकॉज BitSat का लेवल सेम आ रहा है. केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो मोर और लेस सेम. फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ पूछते हैं तो इग्नोर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इज़ ऑलमोस्ट द सेम लेवल ऑफ BitSat. सो जेई मेन पे ही उसके लिए स्टिक रहो. बाकी मैथ्स के लिए जस्ट सॉल्व द ईजी लेवल क्वेश्चंस और ईजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस. दैट विल बी मोर देन एनफ. और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू डोंट वांट टू सॉल्व जेई मेन के PYQs, यू कैन सॉल्व लेवल 1 मॉड्यूल ऑफ एनी बुक, एनी कोचिंग PYQ. बेसिकली जो कि लेवल 1 दिया होता है, जेई मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं. यू कैन सॉल्व दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन. तुम्हारी थ्योरी हो जाएगी, तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यू विल बी रेडी टू नेल BitSat. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेक शॉर्ट नोट्स. क्योंकि सिलेबस इतना सारा है, यू नीड टू कवर सो मैनी थिंग्स. मेकिंग शॉर्ट नोट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम सारा का सारा सिलेबस बहुत कम टाइम के अंदर क्विकली यू कैन रिवाइज. ठीक है ना? सो मेक श्योर यू मेक शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली. इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स
at this point, so do let me know in the comments below. But majorly basic पॉइंट्स लिख लो हर चैप्टर के. कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस क्वेश्चन का एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना के छोटा सा एक सोल्यूशन लिख लो, सो दैट यू गेट रिमाइंडेड कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व कैसे हो रहा था. सपोज करो मैथ्स में तुमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया इंटीग्रेशन का, एंड उसका एक स्पेसिफिक अप्रोच है उस क्वेश्चन को करने का, एंड तुमने सोल्यूशन देख लिया, बट अगले दिन तुम उस क्वेश्चन को भूल गए, वापस से सेम क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया एंड यू फॉरगेट हाउ टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन. सो फ़ायदा ही क्या हुआ फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने का, फ़ायदा ही क्या हुआ सोल्यूशन देखने का अगर तुम्हें वो चीज़ याद ही नहीं है. फ़ायदा ही क्या हुआ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का जबकि उन 100 में से तुमको हार्डली 10 या 20 क्वेश्चन ही याद है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिटेन क्वेश्चंस रादर देन डूइंग मैनी क्वेश्चंस. ठीक है, जितने क्वेश्चंस करो उनको रिटेन करना इंपॉर्टेंट है. सो मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिटेन द क्वेश्चंस एंड द कंसेप्ट्स. दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रिवाइज शॉर्ट नोट्स एवरी सिंगल डे ताकि वो तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहे. तुम्हें पता है कितने सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिस्ट्री में, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना हाई वेटेज था फर्स्ट अटेम्प्ट में. उसके बाद में फिजिक्स में काफ़ी सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो यू कांट just ignore theory, so make short notes of that and keep revising it again and again. So short notes plus revision of it in a very regular interval is really important. Next and the most important thing is to give mocks. अब मॉक्स भी तुम्हें ऐसा नहीं देने कि तुम हर रोज़ मॉक्स दिए जा रहे हो. दिस इज़ एब्सोल्यूट बेवकूफ़ी. तो ऐसे काम नहीं करना है. हर रोज़ मॉक तुम्हें उसी केस में देना है जब तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो एंड यू आर श्योर अबाउट कि अब मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है. नाउ जस्ट आई नीड टू गिव मॉक्स. अगर तुम्हारे 250 270 मार्क्स आ रहे हैं हर मॉक्स के साथ एंड थोड़ा इंप्रूव होते जा रहे हैं, देन गिव्स मॉक्स एवरी सिंगल डे. एनालाइज, वर्क ऑन द वीक पार्ट्स, थोड़े बहुत जो भी वीक एरियाज मिल रहे हैं, एंड जस्ट गिव मॉक्स एवरी सिंगल डे उस केस में. नहीं तो आइडेंटिफाई कि तुम्हारा सिलेबस कितना बचा है, कितना तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कितने कॉन्सेप्ट्स पे तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली मेक अ प्लान ऑन व्हेन एंड हाउ यू नीड टू गिव द मॉक टेस्ट. कि अभी तो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ एंड उसके कुछ दिन बाद मॉक्स देता हूँ एंड एंड के डेज में मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा मॉक्स देने की. ऐसा भी कर सकते. ऑल्सो गिविंग द मॉक टेस्ट, तुम्हें अभी से डिसाइड कर लो कि तुम कौन सा स्लॉट लेने वाले हो. कौन सा स्लॉट, दिन का स्लॉट लेने वाले हो, सुबह का स्लॉट लेने वाले हो कि आफ्टरनून स्लॉट लेने वाले हो, किस दिन लेने वाले हो, ये अभी से डिसाइड कर लो. एंड अकॉर्डिंगली अगर मॉर्निंग का स्लॉट है तो मॉर्निंग में मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस करो. अगर आफ्टरनून का स्लॉट ले रहे हो तो आफ्टरनून में उसी टाइम पे देने की प्रैक्टिस करो. फिर बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारी प्रिपरेशन थी बट हम अच्छा नहीं कर पाए. दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि हमारा बॉडी क्लॉक उस अकॉर्डिंग सेट नहीं होता. मान लो हम रात में बैठ के तो 12-1 बजे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो माइंड फुल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, बट ऑन द मेन डे वी एक्सपेक्ट कि हमारा माइंड फुल एफिशिएंसी पे काम करेगा दोपहर वाले शिफ्ट में. हाउ इज़ इट पॉसिबल इफ़ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड लाइक दैट. ठीक है ना. सो बॉडी को उस चीज़ से फैमिलराइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए उस टाइम पे, उस स्पेसिफिक टाइम पे मॉक टेस्ट देना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. बाकी अभी लास्ट कुछ दिन बचे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव मॉक्स फ्रॉम द रेलेवेंट रिसोर्स. इधर उधर से मॉक टेस्ट देने के लिए मत जाओ. अगर you need a good mock test series, Bitsyans have made it for you in www.fodu.club. You can check that out. वहाँ पर आपको mentorship का भी support मिलता है WhatsApp में, plus we have weekly G meets. बाकी पूरा proper solution analysis वो सब कुछ आपको वेबसाइट में properly मिल जाती है, उसकी टेंशन मत लो. टोटल 10 + 5 15 मॉक टेस्ट तुम्हें मिलने वाले हैं, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बिटसैट. चेक दैट आउट. कोई भी डाउट है कि मॉक टेस्ट कैसे, तो गो. हमारे बच्चे जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इतने दिन से, दे हैव रिटन रिव्यूज़ ऑन Quora. यू कैन गो टू Quora एंड चेक अवर रिव्यूज़ एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली. बट अभी लेट मत करो चीज़ों के लिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है. टेक द राइट डिसीजन एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द राइट रिसोर्स. ओके, अगर तुम्हारे पास में राइट रिसोर्स है, तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, ट्रैक में चल रहा है, देन वेल एंड गुड, कीप गोइंग. अगर अच्छा मॉक टेस्ट सीरीज नहीं है देन चेक आउट fodu.club. बट अगर कहीं भी लगता है कि आई डोंट हैव द राइट रिसोर्स, आई डोंट हैव द मॉक टेस्ट सीरीज, चेक आउट fodu.club. राइट. एक बहुत एडवांस्ड टिप देना चाहूँगा. इफ़ यू वांट टू फॉलो, कोई चीज़ बहुत ढंग से याद नहीं हो रही, स्पेसिफिकली रिएक्शंस इनऑर्गेनिक में, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ें याद नहीं हो रही, मेक ऑडियो नोट्स का ऐप होगा तुम्हारे मोबाइल में, सारे के सारे रिएक्शंस बोल लो. एंड जब तुम खाना खा रहे हो या फिर फ्री टाइम में बैठे हुए, जस्ट प्ले दैट ऑडियो एंड इमेजिन द रिएक्शंस इन योर हेड. सब चीज़ें ढंग से तुम्हारे दिमाग में याद हो जाएंगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना, time is a very limited resource, so you need to plan accordingly, right? You need to plan accordingly. So make a proper plan कि how आर यू गोइंग टू डू थिंग्स. पर डे के हिसाब से कैसे करोगे, किस दिन तुम्हें कौन सा मॉक देना है ये डिसाइड कर लो कि अभी किस फ्रीक्वेंसी में देना है एंड एंड के डेज में किस फ्रीक्वेंसी में देना है. जस्ट डिसाइड दैट एंड मेक अ प्लान. हर दिन तुम्हें किस हिसाब से प्लान करना है, कब तुम्हें वीक एरियाज पे वर्क ऑन करना है, कब तुम्हें टेस्ट एनालिसिस करनी है, कब तुम्हें उन टेस्ट के क्वेश्चंस का जो तुम्हें पता चले कि यहाँ पर मैं वीक हूँ उसको कवर करना है. सो मेक एवरीथिंग क्लियर. एकदम रैंडम नहीं चलना है. मेक एवरीथिंग क्लियर इन योर हेड कि किस टाइम पे मुझे क्या डिवोट करना है एंड एक्ट अकॉर्डिंगली.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ स्लीप, ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है बट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड के टाइम्स में ऐसा होता है ना बच्चों का कि भैया हम 16 घंटे पढ़ेंगे, हम फाड़ देंगे भैया बिट्सैट। इट्स गुड टू हैव दिस एंथुजियाज्म, बट काफ़ी बार ये चीज़ हमको बैकफायर भी कर जाती है क्योंकि हम स्लीप जैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को नेगलेक्ट कर देते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट यू टेक एडिक्वेट स्लीप, क्योंकि जब आप सोते हो ना तभी चीज़ें आपको ढंग से याद होती है। लाइक वॉट एवर यू हैव स्टडीड इट्स यूजलेस इफ़ इट्स नॉट रिटेन्ड, एज आई सेड यू अर्लियर। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू retain things, and for that sleep is an essential factor, so keep that in mind. इसके बाद we'll talk about exam temperament, which is really important thing. अब now you have done everything which you could have possibly imagined. मैंने अपना 100% दे दिया भैया, बट अभी ऐसा हमारे पास में एक केस है कि वन स्टूडेंट हु वॉज कॉन्स्टेंटली स्कोरिंग अराउंड 290-300 मार्क्स, बट ऑन द एग्ज़ाम डे इतना ज़्यादा नर्वस हो गया दैट ही स्कोर्ड अराउंड 220 मार्क्स ऑन द एक्चुअल पेपर, बिकॉज इतना ज़्यादा नर्वस हो गया, इतना ज़्यादा डर गया, इतना ज़्यादा पैनिक कर गया. सो it's important to maintain that exam temperament, to maintain that mindset that I have given my best and now I will go in the exam hall and give my best again. That's the confidence. नर्वस होके कोई फ़ायदा नहीं है. तुम जितना अपने आप को ये चीज़ रिमाइंड कराओगे कि अरे यार बिट्सैट ही मेरा लास्ट होप है, बिट्सैट के अलावा अगर मेरा बिट्स में नहीं हुआ तो मुझे VIT में पढ़ना पड़ेगा, मुझे किसी और फालतू कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा. द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल रिमाइंड योर सेल्फ दीज थिंग्स, तुम्हारा प्रेशर उतना बढ़ेगा, माइंड में एंग्जाइटी उतनी बढ़ेगी, एंड उससे तुमको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला. So just ignore such things and अपने आप को बोलो I have confidence in myself, I have worked so hard, I'm gonna give my fucking best. Look into the mirror and say I'm gonna give my fucking best in the exam hall. That's the spirit you need, that's the confidence you need to nail BITSAT. कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम है यार, जाओ और फोड़ के आ जाओ. मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड अटेम्प्ट मिला है लाइफ में, 2 चांसेस बहुत कम मिलते हैं. Like you have got this second chance, don't waste it and give your best. जितने भी दिन बच्चे अपनी जान लगा दो, एंड फाइनल एग्जाम के दिन भी just go and give your fucking best. अब मॉक्स तो दे दिए, अब मॉक्स के बाद में उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस पे आने वाली है. सो डू चेक इट आउट. बहुत जल्द 1-2 दिन में मैं उस वीडियो को रिलीज़ कर दूंगा. डू चेक दैट आउट, नो द राइट स्ट्रैटेजी and the right method to analyze mock test and increase your score drastically. So analyzing mock test is really very important step. जितना important mock test देना है उससे भी काफ़ी ज़्यादा important है analyze करना, then only you will be able to improve. I have confidence in you that you'll nail BITSAT and you'll come to BITS Pilani. It might be possible that you have cracked JEE Mains. Good. It might be possible that you cracked JEE Advanced. Good. It might be possible that you cracked neither of them and BITSAT is your last option to get into a tier 1 college. In any of the cases, just have faith in yourself, because I have seen people who have done worse in JEE who perform so well in BITSAT. 2 things are very important: practicing from the right resource. Second, having confidence in yourself. Believe in yourself and go nail in BITSAT. साथ में फोड़ेंगे. All the very best.